Good evening. शुभ संध्या। Praise the Lord. Now प्रभु this की is महिमा। this is the picture I wanted to show you. यस छवि मैं आपको दिखलाना चाहता था। As you know that I'm mentoring some of the pastors in Jharkhand. आप जैसे कि जानते होंगे कि झारखंड में कुछ पास्टर्स को हम मेंटरिंग कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं प्रभु में। और Of course, I just wanted them to be together in team. मैं चाहता था कि मेरा प्रयास यह था कि वो एक साथ दलबद्ध बने। And not only that, they continue they serve the Lord, they witness and they preach the word. ताकि वो लोग सेवा करते रहे, वचन की सेविकाएं को करते रहे। Because you know that it's a big challenge sometimes to keep a team together. ये एक बहुत बड़ी चुनौती की जैसा है कि एक दल को एक साथ एक बनाकर रखना। You imagine that even a small thing like marriage, that team of two people, it is very difficult sometimes to work together. आप छोटा सा मिसाल के तौर पे देखिए कि एक शादी जहां पे सिर्फ दो जन है, लेकिन उसको भी टिका के रहना बहुत समय एक चुनौती भरा हो जाता है। Now you can imagine what about bigger team? They will have more challenges. तो सोच सकते हैं कि अगर एक बड़ा टीम हो, समूह हो, तो वहां चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है। This is all because of different background, different personality and all these things. और ये खास करके कि एक हमारा जो अतीत या हमारा पुराना समय, हमारा व्यक्तित्व, इन तमाम कारणों के बावजूद। So our team in Dumka area kind of it was scattered. दुमका क्षेत्र में हमारा जो समूह था वो बहुत ही तितर बितर था। And last couple of months I had been going and tried to bring them together and to do some planning. और पिछले कुछ महीनों से मैं जा रहा था, उनके साथ कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रहा था काम के लिए। And one of the thing what we wanted to do is we will do evangelistic program in those villages. और एक चीज हम करना चाह रहे थे कि उस वहां के पास के जितने भी गांव है वहां पर हम प्रभु के वचन के बारे में, उसके नाम का प्रचार हम करना चाहते थे। Just inform them 2-3 days ago and just that we are coming as a team and then set up a sound system and start program. ताकि 2-3 दिन पहले हम उन्हें सूचित कर सके, उसके बाद हम एक प्रोग्राम के जरिए इस काम को करने पाए। And one of their need was they wanted to have a sound system, microphone and things like that. उन्हें एक साउंड बॉक्स या जो माइक्रोफोन, इन तमाम चीजों की जरूरत थी। And I had requested this to our team here, a नवजीवन team here. मैंने हमारे नवजीवन के इस कलीसिया के टीम को अनुरोध किया था कि वो इस बात को प्रदान करने में मदद करे। And they graciously agreed and we bought this and took it and presented to them. और हमारी टीम ने इस बात के लिए राजी हुए और इन तमाम चीजों को खरीदा हमने और उनको हमने मुहैया किया इन चीजों को। And last time when we went to this village, almost the whole village came. और जब हम पिछली बार गांव में गए थे, करीब की करीब पूरा गांव आ चुका था। And it was nice program. We had couple of songs, then message, drama. तो अच्छा प्रोग्राम रहा, गाना हुआ, प्रोग्राम हुआ, मैसेज हुआ वहां पे। And in the days to come we want to do something better there. और आने वाले दिनों में और भी अच्छा कुछ करना चाहते हैं। So keep praying for this group. तो इस समूह के लिए आप प्रार्थना करिए। Also last week I was in Ranchi. I met our couple of other pastors there. पिछले हफ्ते में रांची में था और भी बहुत सारे पास्टर्स लोगों से मैं मिला। And we had a nice time together. उनके साथ भी बहुत ही अच्छा समय बीता हमारा। And I was really thanking the Lord for their lives. मैं प्रभु को धन्यवादी था उनके जीवन के लिए। Because 2 years back when I see my life, I was standing in a place where I was not very sure that how my future will look like. 2 साल पहले मैं एक ऐसे पड़ाव पर खड़ा था कि मैं इस बात में थोड़ा असमंजस में था कि मेरा भविष्य कैसा दिखेगा। Because I was about to leave Campus Crusade. क्योंकि उस समय मैं कैंपस क्रूसेड की सेविकाएं से निकल रहा था। And one reason I wanted to leave Campus Crusade is because I was not very sure that whether Campus Crusade will come along with me to fulfill the dream and vision what I have for the Lord. और एक वजह जिसके चलते हमने कैंपस क्रूसेड की कलीसिया से मैं निकला, सिर्फ इस बात को निश्चित करने के लिए, या निश्चय नहीं था मुझे इस बात का कि कैंपस क्रूसेड की सेविकाएं मेरे दर्शन में कितना वो आगे आ पाएंगी। Now one side it was a great uncertainty because I was not very sure who will be on my team when I leave Campus Crusade. I was not very sure about that. एक तरफ ये एक अनिश्चयता थी मेरे जीवन में कि मेरा भविष्य कैसे दिखेगा, मैं किन के साथ
काम करूंगा, मेरे समूह में कौन रहेगा। And something which was really pulling me back was the team in Jharkhand, team in Calcutta, and team everywhere with whom I had been working for years. और एक चीज जो मुझे बार बार पीछे खींच रही थी वो ये कि झारखंड में या पश्चिम बंगाल में जो भी टीम हमने खड़े किए थे उनके साथ में पिछले कई समय से जुड़ा हुआ था। Now a thought was coming that if I leave Crusade, all these teams will go away from me. I'll have to start a new team. I'll have to start all over again. एक सोच मेरे मन में आ रहा था कि अगर मैं कैंपस क्रूसेड छोड़ देता हूं तो ये सारे जो समूह है, टीम बने हुए हैं, इनके साथ मेरा नाता नहीं रहेगा, या फिर वो जिनको मैंने बड़ा किया, जिनको उभारा, इनके साथ हर एक प्रकार के काम से मैं वंचित हो जाऊंगा। But the moment I think about staying back, something will come which will really, stir my heart and say that I don't think you need to keep on, continue with Campus Crusade. You have to leave Crusade and move out of this organization. लेकिन जब मैं रहना चाहता था तो मेरे मन में अचानक बहुत सारी सोच आने लगी कि नहीं, मैं रह भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे जरूर यहां से निकलना पड़ेगा कि हाँ, तुम्हें सुशील निकलना है यहां से, तुम्हारा समय हो गया। And with all this uncertainty, there was one certainty that we had Navjeevan team. एक निश्चयता जरूर थी कि हमारे साथ नवजीवन टीम था उस समय। And just I moved out, of course, before me, Viman moved out. I moved out with just this team, not thinking what the future will look like. हालांकि मैं निकला, मेरे पहले विमान निकले इस टीम के साथ। हालांकि एक छोटा टीम, बहुत सारी चीजों के बारे में अनिश्चयता थी, लेकिन हम साथ थे। And today when I look back and today when I see the present situation, I would say that all the team with whom I was working, they are with me. आज मैं वर्तमान को देखता हूं अगर, तो मैं पाता हूं कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे आज वो सब साथी हैं। Today when I think about Berean Church in Jharkhand and beyond, they are with us. आज मैं देखता हूं जो बेरियन कलीसिया को जो झारखंड में काम कर रही है वो मेरे साथ है। Today when we think about GHNI Global Hope Network, they are with us. जब मैं ग्लोबल होप नेटवर्क के बारे में सोचता हूं वो भी आज हमारी कलीसिया के साथ है। Lincoln Berean Church, Jeff, the mission pastor and all the pastoral team, they are with us. जो लिंकन बेरियन चर्च, उनके पास्टर जेफ और उनकी तमाम जो टीम सदस्य हैं सब हमारे साथ हैं। So I'm very, very thankful to the Lord for all these provisions, or the way He has been doing, the way He is leading me, or this team and all of us together. तो मैं प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा धन्यवादी हूं कि जिस प्रकार से उसने हमारी अगुवाई की, अभी भी वो हमारे साथ है, हमारी टीम के साथ है। मैं धन्यवादी हूं। Now last week I was there for 2 days and we were just going through a seminar on team leadership. और पिछले सप्ताह में वहां था, 2 दिन के लिए हम लोग टीम लीडरशिप के ऊपर एक सेमिनार को करने पाए। And I was once again reminded how challenging it is to work in a team. और एक और बात मुझे स्मरण हुआ कि कितना चुनौती भरा है एक टीम को साथ लेके काम करना। Because Satan, he will try his best to pull us apart. क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है एक टीम को तोड़ने की। But I think when we pray together, work together and trust the Lord together, we will stay in team and together we can achieve more. और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं साथ में, जब हम काम करते हैं साथ में और परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं साथ में, तो परमेश्वर हमारे टीम को यूज करेगा। Okay, so without much delay, we will go into message. और विलंब ना करते हुए हम लोग आज के पैगाम में जाएंगे। Now this evening my voice may be a little down. आज की शाम मेरा स्वर शायद थोड़ा सा ढीला रहे या नीचा रहे। I don't know, because of this travel or something, I was feeling very weak. शायद हमारा बहुत जो जर्नी रहा, यात्रा रहा, उसके चलते थोड़ा दुर्बल हूं मैं। So bear with me. तो माफ कीजिएगा। But this evening I'm going to talk about the power of the Word of God. मैं इस शाम बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के सामर्थ के बारे में। There is power in the Word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। If you see John chapter 1 verse 1, अगर आप यूहन्ना का 1 देखते हैं, it says, in the beginning was the Word, आदि में वचन था,
and the word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and word was God. और वचन परमेश्वर था, And in fact, through word, God created everything. और उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हर एक चीज की सृष्टि की। Now God said, "Let there be light," and there was light. और परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए, और उजाला हुआ। Now, one incident I'll just remind you about the life of Jesus when he was to raise Lazarus from death. मैं एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की सेविकाएं में जब वो लाजर को जिलाना चाहते थे, What did he do? उसने क्या किया? He did not bring any equipment for raising him up. लाजर को जिलाने के लिए प्रभु यीशु अपने साथ कोई उपकरण नहीं लेके आए, Now, what he had to do is just say, "Lazarus, come out." और एक ही काम उसने किया कि लाजर तुम बाहर आ जाओ। The word he spoke, उसने वचन को कहा, and Lazarus came out. और लाजर बाहर आ Now, गया। there is power in the word. और वचन में क्षमता है, ताकत है। Not only power in the word of God, but also the word you speak has power. सिर्फ परमेश्वर के वचन में ताकत है ऐसा नहीं, लेकिन आपके द्वारा कही हुई बात में भी सामर्थ होती That's why है। we need to be very careful when we say words. इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सचेतन या फिर बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम हमारे मुंह से कुछ बातों को कहते हैं, Because word can encourage people, at the same time word can destroy people. क्योंकि हमारे शब्द, हमारे वचन लोगों को उत्साह दे सकते हैं, तैयार कर सकता है, और लोगों को तोड़ भी सकता है। When I say to Biman, "Biman, you are so good and you are so handsome, nice and so loving," he will feel encouraged. जब मैं विमान को बोलूंगा कि विमान तुम बहुत अच्छे हो, तुम इत्यादि हो, तो वो बहुत अच्छा उसको महसूस होगा। But if I tell him, "Biman, you are good for nothing," और अगर मैं बोलूं विमान तुम किसी काम के योग्य नहीं हो, अच्छे नहीं हो, what will be his condition? उसका हालात कैसा होगा? Now I know that we are not, every area of our life is not perfect. मैं जानता हूं कि हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र शायद सिद्ध या परफेक्ट नहीं है। Maybe you will find more bad thing in our life than good. शायद हमारे जीवन में बुराई ज्यादा लगे आपको अच्छाई से। But what we have to do as believers, we have to search for those good things people have, and let's encourage one another. लेकिन हमें जो चुनना है वो यह कि विश्वासी होने के नाते हम लोगों के जीवन में जो अच्छा है उसको लेकर उन्हें प्रोत्साहन दे, उन्हें तैयार करें। So the word has power. तो इससे ये पता चलता है कि हमारे वचन में ताकत है। And this evening we are going to talk about the word of God. आज की शाम हम बात करेंगे प्रभु के वचन के बारे And में। the word of God, the role it plays in your life and my life. और हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का वह वचन वह आपके और मेरी जीवन में किस भूमिका को अदा करता है। And Jesus says, "Heaven and earth shall pass away, but my word will remain forever." यीशु ने कहा कि स्वर्ग पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। And this evening we are going to go to Matthew chapter 13. मत्ती का 13 से हम देखेंगे, And there we see that Jesus is talking in parable. और हम देखेंगे कि यीशु मसीह कहानियों से बात कर रहे हैं, कहानियों के माध्यम से। Today we are going to take one other parable. आज की शाम में एक कहानी को देखेंगे, And also we'll see why did Jesus speak in parable. हम इस बात में भी जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह क्यों कहानी या छोटे छोटे घटनाओं के दृष्टांतों के माध्यम से बात करते थे। But before that, let's bow our head and pray and ask the Lord to bless our लेकिन time आइए हम together. उसके पहले प्रार्थना करें, प्रभु आशीष करे हमें। Pastor Biman, if you can pray for this time together. प्रभु हम आपके पास आते हैं, प्रभु आपकी वचन के भूखे बनकर प्रभु जी। ओ पिता, आज की शाम हमारा यहाँ आने का मकसद यह है कि प्रभु हम आपके वचन से परिपूर्ण हो और आपकी पवित्रता ही हमारे जीवन में आए और हम अपने आत्मा में और बलवान बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप अपने वचन से हर एक को पूरा कर प्रभु, और अपनी महिमा हमारे जीवन से ले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. So why did Jesus speak in parable? क्यों यीशु मसीह कहानियों या दृष्टांतों के माध्यम से
बातें करते The थे। scripture says that Jesus spoke all these things to the crowd in parable. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled to what was spoken through the prophet, I will open my mouth in parable, I will utter things hidden since the creation of the world. ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वहां उनसे कुछ न कहता था, क्योंकि कि जो वचन भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। Okay, so if you see the life of Jesus, there are many places we see that he is doing things just to fulfill the prophecy which was made concerning him. और यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखते हैं, हम इस बात को पाएंगे कि बहुत बार उन्होंने उन चीजों को किया जो चीज एक्चुअली वो परमेश्वर के जो योजना है, जो भविष्य वक्ताओं ने बोल रखा था, उसे पूरा करने के लिए। And of course the prophecy we find it in Psalm chapter 78 verse 2. भजन संगीता का 72 का 2 में भी हम पाते हैं कि जो भी भविष्यवाणी है पूरी हुई। Now another in the same chapter we find, this is why I speak to them in parable. When the disciple they ask him, why do you speak to people in parable? जब शिष्यों ने कहा कि आप क्यों दृष्टांतों के माध्यम से बात करते हैं, And he said, this is why I speak to them in parable. और उसने बताया कि इस कारण से मैं दृष्टांतों से बात करता हूं, Though seeing they do not see, ताकि जो चीज वो नहीं देख पाते उसे देख सके, though hearing they do not hear or understand. और सुनते हुए न सुनते और न समझते। Okay, so here we see that Jesus is talking to a group of people. There are some people they see things, but they act as if they don't see. यीशु मसीह कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग यद्यपि सुन रहे हैं लेकिन वो ऐसे जीते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ सुना नहीं। And they see, they clearly see everything is happening in front of their eyes, but they act as if they don't see. उनके आंखों के सामने बहुत चीजें घट रही है, बहुत चीजों को वो देखने पा रहे हैं, लेकिन उनका जीवन और उनका रवैया ऐसा है कि मानो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। And then further it says that in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will be ever hearing but never understanding, you will be ever seeing but never perceiving. और उनके विषय में यशाया की यहाँ भविष्यवाणी है, पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। For this people's heart has become closed. क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, They hardly hear. और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, And they have closed their eyes. और उन्होंने अपने आंखें मूंद ली हैं। Now Jesus is talking to a group of people here. यीशु मसीह यहाँ पर एक समूह से बात कर रहे हैं। Now there are different kinds of people there. उस समूह में बहुत तरह के लोग हैं। Because number one were his disciple. कुछ लोग उनके शिष्य थे, Those who have already given up everything, those who have left their home and come with Jesus. कुछ लोग शिष्य हैं, शिष्य जिन्होंने अपने शायद घर बार या अपना सारा चीजों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे थे। Oh, they are committed for the Lord. और वो प्रभु के प्रति समर्पित हैं। They have said yes to Lord Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह को हाँ कहा है, And they have said no to those sins and the world. और उन्होंने ना कहा है दुनियादारी की दुनियावी बातों को और अपने पाप की बातों को। And in fact Jesus told them, if you want to follow me, you should deny yourself, take up your cross and follow me. और यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि अगर तुम मुझे अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को अस्वीकार करो और मेरे पीछे चलो। So this first group of people, they are his disciples. They know what they have done and they are sure that they want to die forever in Jesus Christ. तो इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु के शिष्य थे, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है और प्रभु के काम के लिए अपने प्राण तक देने के लिए वो अग्रसर होते Now हैं। there could be group of people, those who are yet to decide. I'm not very sure
who Jesus is. I'm not very sure whether I will follow him. और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोग शायद यकीन नहीं कर सकते कि हाँ, मैं नहीं जानता यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्यादा, मैं नहीं जानता कि मैं सचमुच उनके पीछे चलूंगा। But yet there were another group of people, they wanted to find fault in Jesus. और एक और समूह के लोग, उस समूह में और भी एक ऐसे तरह के लोग थे जो लोग यीशु मसीह में गलतियां ढूंढने के लिए आए थे। Okay, so here Jesus is talking to a group of people, and some of them, he says, though they see things, but still they don't see. और यीशु मसीह जब इनसे बात कर रहे हैं, वो देखते समूह में ऐसे लोग हैं, यद्यपि वो देखते हैं लेकिन नहीं सूझता उन्हें कुछ। Though hearing, but do not hear or understand. जो सुनते हैं लेकिन सचमुच में सुनते नहीं है और समझते नहीं है। And just to maybe describe this group of people to whom he is speaking, he said a parable. और इस प्रकार के जो ग्रुप है, इसको और अच्छा व्याख्या करने के लिए उसने एक दृष्टांत या कहानी को And बताया। the parable is of the sower. और यह जो फसल को बोने वाला जो एक कहानी है, उसके बारे में, जो बीज को बोने वाला कहानी के बारे में बताया। Okay, here I will ask Biman to read in Hindi. हम हिंदी में पढ़ेंगे इसको। और उसने उससे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, यहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जैसे कि जिसके कान हो वह सुन ले। Now how many of you are from farming background? आप लोग कितने जन कृषक परिवार से ताल्लुक रखते हैं? You know about farming. आप कृषि के बारे में जानते हैं? I know very well. मैं जानता हूं, Because all my childhood I have done that. क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मैंने कृषि की है। Now Jesus is talking about the sower who is sowing the seeds. यीशु मसीह एक बीज बोने के बारे के बारे में बोल And रहे he हैं। is talking about there are four types of land. और वो बता रहा है कि 4 प्रकार की भूमियां हैं। One is the along the path, एक भूमि जो रास्ते के ऊपर बीज गिरी and the birds comes and ate up the seed. और पक्षियां आई और उस भूमि के जो रास्ते के ऊपर पड़ी बीजों को Why? चुग लिया। Because it was in the top of the soil. क्योंकि वो जमीन के एकदम ऊपर में गिरी हुई है। It did not go inside. क्योंकि वो जमीन के अंदर नहीं घुसी है। And so a bird came एक पक्षी आया and took it. और खा लिया। Another type of land he was talking about is rocky land. दूसरा भूमि जिसके बारे में वो बतला रहे हैं, जो कि एक पथरीला भूमि। Now there are less soil there. और पथरीली भूमि में मिट्टी कम है। What happens? क्या होता है? There is no enough soil to take the root in that land. पथरीली भूमि में मिट्टी ना होने के कारण वहां बीज अच्छी जमीन ना पाते हुए वहां उगा नहीं ठीक से। So what happens? The plant were scorched and they withered, and because they had no root. और जो फसल थी या फिर जो बीज वो सही से उगा नहीं, वह सूख गया। And then of course the third one is talking about among the thorns. और तीसरी भूमि थी जो कांटीली झाड़ियां, वहां पर बीज गिरा। And of course they grew up, but they were choked by the plant. और वो बढ़े थोड़ी देर, लेकिन कांटों के चलते झाड़ियों में वो फूट गया और वो उग नहीं सका आगे। And then of course his fourth one, he is talking about the good soil. और चौथा जो है वहां अच्छी भूमि के बारे में बता रहा है। Now if we just look at the description of what do you see here, we can see that यहां पे हम देख सकते हैं कि हम क्या देखने पाते हैं इस कहानी से। the same seed was sown in all the production was different. एक चीज को हम सामान्य पाते हैं कि एक ही बीज इन चारों भूमि में गिरा, लेकिन उसका जो आउटकम या उसका जो प्रोडक्शन बाहर जो निकला वह अलग रहा। So the problem is not with the seed, but the problem was with the land. तो समस्या बीज के साथ नहीं थी, समस्या भूमि के साथ थी।
But as I'm from farming background, I can say that, the land can be converted into fertile one provided someone works on that. मैं क्योंकि कृषक बैकग्राउंड से आता हूं, मैं इतना जानता हूं कि एक जमीन को हम उपजाऊ कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं अगर उसके पीछे कोई प्रयत्न करे या काम करे. Now, of course, today we may know that what Jesus was talking about. शायद आज यहां पर बैठकर हम जानते हैं कि यीशु मसीह शायद किस बारे में बात कर रहे हैं. Because right after that you find the explanation of what Jesus was talking about. क्योंकि इस पद के बाद में यीशु मसीह सारी बातों को व्याख्या भी करते हैं. But when somebody heard for the first time, लेकिन जब किसी ने पहली बार सुना, they were puzzled. What is Jesus talking about? वो लोग थोड़े भौचक्के रह गए कि यीशु मसीह किस बारे में बात कर And रहे then हैं. of course his disciples said, Lord, what are you talking about? Why do you speak to us in parable? Tell us. और What उसके is- शिष्य ने बोला कि प्रभु आप कहानी और दृष्टांत से हमसे क्यों बात कर रहे हैं, आप सही से बताइए. And I think many of these people, they did not understand what Jesus meant. और बहुत सारे जो लोग थे वो लोग शायद समझ नहीं पाए थे कि यीशु किस बारे में बात कर रहे हैं. And the condition would be same if we did not know what is the explanation of this parable. और एक ही हालात शायद हमारी भी होगी अगर हम इस बारे में जो हम बात कर रहे हैं इसकी व्याख्या को ना समझे. So here we see that what is the explanation of those parable or the meaning of the parable. आइए हम इस कहानी के मतलब को समझें. Now, number one, of course, is the land that was along the path. जो जमीन रास्ते में जो बीज गिरा वो जमीन, And the seed is the word of God. जो बीज है उसको हम प्रभु के वचन से तुलना कर रहे हैं. And the land is people's heart. और जो जमीन है उसका मतलब है मनुष्य का हृदय. Now, when you see the word of God here is compared with the seed. और जब आप देखते हैं कि प्रभु के वचन को बीज से तुलना की गई है, It has the potential to grow. A seed has the potential to grow and to produce. एक बीज में यह क्षमता होती है कि वह उस बीज से बढ़कर एक पौधा या पेड़ बन And सके. same with the word of God. Word of God has the power to transform life. तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ होता है कि वह बढ़कर एक इंसान के जीवन को परिवर्तन करने में सक्षम है. But I think the question here is not about the word of God, but about our heart, how we take it. लेकिन सवाल यहां पे यह नहीं है कि प्रभु का वचन या बीज, सवाल यह है हमारे हृदय की अवस्था. Now, when I talk to you this evening, I'm talking to you with two perspectives. मैं आज की शाम जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं दो धारणाओं को लेकर बात कर रहा हूं. Number one, पहला, how you should take the word of God when you study or when you hear the word. पहला यह कि आप किस प्रकार प्रभु के वचन को ले जब आप उसे अध्ययन या पढ़ रहे हैं. And number two, दूसरी बात, Jesus is talking about sower. यीशु मसीह कृषक के बारे में बात कर रहे हैं. And you are sower. आप कृषक हैं. God has appointed Navjivan or all the people, those who are in Navjivan, as sower of His word. परमेश्वर ने नवजीवन के जितने लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद है, हर एक को एक कृषक होने के बुलाहट को दिए कि आप प्रभु के काम को करें. So one side, एक तरफ you are the sower of the word of God. एक तरफ आप प्रभु के वचन को बोने वाले हैं. So we will learn from this what are some of the things we can learn as the sower of the word. तो एक प्रभु के वचन को बोने वाले कृषक के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसे हम समझेंगे. And second thing, still we need the word of God to work in our heart. और दूसरी बात यह है कि हमें प्रभु के वचन की जरूरत है ताकि वो हमारे हृदय में काम करे. Because we all need spiritual food, right? क्योंकि हम सबको आत्मिक भोजन की जरूरत है. सही. All of us, we need physical food. हम सबको शारीरिक भोजन की जरूरत है. How many of you have not taken food for last 5 days? आप लोग कितने दिन 5 दिन से खाना नहीं खाए हैं? Anybody here? कोई है यहाँ पर? Oh, okay. Let's for 3 days. For last 3 days, you have 3 not दिन taken. किसने नहीं खाया है? At least today, आज किसने नहीं खाया है? all of us, we have taken food. हम सब ने खाना खाया है. But if I ask you that how many of you have not read the Bible for last 5 days? मैं अगर सवाल करूं कितनों ने 5 दिन से बाइबल नहीं पढ़ा, तो
you may not raise your hand, and I don't want you to raise your hand. शायद आप हाथ नहीं उठाएंगे और मैं आपको चाहता भी नहीं आप हाथ उठाएं। But the truth is this: there could be people here, those who have not read the Bible for last 5 days. लेकिन सच्चाई ये है कि शायद यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो पिछले 5 दिन से प्रभु का वचन भी नहीं पढ़े हैं। Now, I want to tell you that there is power in the Word of God. मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रभु के वचन में सामर्थ है। Now, there are many types of food for physical health. बहुत समय जो खाना होता है वो शरीर के लिए है। Some are very tasty. कुछ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। Some are not that tasty. शायद कुछ खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है। And for some people, some food is tasty. कुछ लोगों के लिए कुछ खाने बहुत स्वादिष्ट हैं। For others, it's not tasty. लेकिन दूसरों के लिए वो खाना स्वादिष्ट नहीं है। Now, for example, jackfruit, you know. अगर आप उदाहरण के तौर पे जो कटहल है। Now, for Nutan, that's very good. नूतन के लिए कटहल बहुत अच्छा है। And for me, that day I don't feel like eating food. और मेरे लिए ऐसा है कि उस दिन शायद मुझे खाना ही नहीं पसंद होगा। But jackfruit is really healthy. लेकिन जो कटहल है वो बहुत ही अच्छा है। Now, whether you like that food or not, अगर आप उसे पसंद करें या ना करें, it is healthy. ये अच्छा है देह के लिए। You have to eat. और आपको खाना चाहिए। And especially children, you know, I see mothers, they run after their children with the food. मैं कुछ माओं को देखता हूं कि बच्चों के पीछे खाने को लेकर दौड़ती रहती है। Now, this is not to embarrass you, Isha, but you know, I remember your childhood. ये ईशा मैं आपको छोटा करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं तुम्हारे बचपन को याद करता हूं। Because I have seen her growing right from childhood. क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से बढ़ते देखा है। And mother, she will just, you know, she will be after Isha along with the food, and she will just run around, and somehow, you know, she will try to feed her. उनकी माँ उसको खिलाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ेगी, वो भी भागेगी उसको खिलाने के लिए। And of course, she will try to hide herself, and all those fun we used to see. तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती थी। ये सारा मजाक हम देखते थे। And mothers say they are so good, you know, they like to feed their children. और माएं बहुत अच्छी होती है, अपने बच्चों को खिलाना चाहती है वो। Whether they like it or not, they have to feed their babies. और बच्चों को पसंद हो या ना हो, माओं को खाना खिलाना है। I remember when Arpan was young, you know, too small. मुझे याद है जब अर्पण काफी छोटा था। And Nutan was about to give him Cerelac. और नूतन जब उसको सेरेलक खिलाना चाहती थी। And the first couple of days I was noticing the moment she puts in the mouth, he would just do like. और मैं वो नहीं करूंगा। और मैं याद कर पाता हूँ कि जब वो मग में डाल रही थी तो वो पुर्र वो करते थे। And you know, it could be everywhere. और वो चारों तरफ मुंह में फैल जाता था। And do you think that Nutan stopped feeding him? आपको क्या लगता है नूतन ने उसको खिलाना बंद कर दिया? No. नहीं, She would keep feeding. उसको खिलाती रहेगी And वो। sometime when he doesn't take it inside, और कभी कभार जब वो अंदर नहीं लेता, she has to press. उसको गाल दबाना पड़ता था। She will just, you know, presses like this as long as the food has not gone inside. जब तक वो खाना अंदर ना चले जाए वो निश्चित करेगी कि गाल को दबा के उस खाने को अंदर उड़ेलेगी। And I sometimes feel like, are you going to kill him or what? मैं कभी कभार सोचता था तुम क्या मार डालोगी उसे? No, but the truth is this, that he cannot live if she does not do that. लेकिन सच्चाई ये है कि वह जिएगा नहीं अगर वो ऐसा ना करेगी Now उसके you साथ। see the importance of the food in our life? क्या आप देख सकते हैं कि खाने का कितना बड़ा जरूरत है हमारे जीवन में? And of course, we are spiritual babies. और यह भी है कि हम आत्मिक रूप से भी बच्चे हैं। The moment we trust in Lord Jesus Christ, we are born into God's family. That means there is a spiritual birth taken place. जिस मुहूर्त में आपने प्रभु के ऊपर विश्वास लाया, आप प्रभु के परिवार में जन्म लिए हैं और अभी आपको आत्मिक खाने की जरूरत पड़ेगी। And if you assume that I will grow without food, अगर आपको ऐसी धारणा हो गई है कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ जाऊंगा बिना आत्मिक खाने के, or you will grow physically without physical food, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना शारीरिक जीवन में बढ़ेंगे बिना खाए, please raise your hand. ऐसा कोई है तो हाथ उठा सकते हैं। I will tell your family member not to give you food. मैं आपके परिवार को बोलूंगा आपको खाना ना दे। Now that's the importance of food. यह है खाने की उपयोगिता।
spiritual babies, you have to eat food. जो आत्मिक बच्चे हैं उन्हें खाने की जरूरत है. Sometime you will like the word of God. कुछ समय आपको प्रभु का वचन अच्छा लगेगा Sometime it will talk to you and you will love it. और बहुत समय ये आपसे डायरेक्टली बात करेगा और आपको बहुत पसंद आएगा. And sometimes you don't even feel like reading it. और बहुत समय आपको पढ़ना भी अच्छा नहीं लगेगा. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, that's true. ये सच्चाई है. Don't feel like reading it. आपको पसंद नहीं हो रहा पढ़ने के लिए, But we need to read. लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है. So, two things. I'm talking to you from two perspectives. मैं आपको दो धारणाओं से बात कर रहा One हूं. is you need the word of God as your spiritual food. पहला कि आपको परमेश्वर का वचन चाहिए आपकी खुद की आत्मिक भोजन या वृद्धि के लिए. You need to take every day आपको लेने की जरूरत है हर दिन. so that there will be fruit in your life. ताकि आपके जीवन में फल रहे हमेशा. Now, last week we had Mark in our church. पिछले सप्ताह हमारे यहाँ पे मार्क थे. Mike, right? Oh, Mike. Mike. And he said that he was believer or he had received Christ and for 14 years he was struggling in his life. जेफ. जेफ के बारे में हम जानते, उसने प्रचार किया था. उसने बताया कि 14 साल वहां एक स्ट्रगल, एक आजमाइश या चैलेंज से गुजरा. He was a spiritual baby. वो आत्मिक रूप से बच्चा But था, he did not grow from there. लेकिन वो वहां से वृद्धि नहीं पाया. 1 year? No. एक साल में भी कोई वृद्धि Not नहीं. 2 years. 2 साल में भी नहीं. 14 years he did not grow. 14 साल वो प्रभु में बढ़ा नहीं. He was struggling with the same bad habits. और हमेशा वो एक ही तरह के गुनाहों से वो जूझ रहा था अपने Oh, जीवन one में. side he wanted to become a good believer. एक तरफ वो बहुत अच्छा मसीह बनना चाहता था, But another side he see that there's no good thing in him. दूसरी तरफ हम देखते उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था. You know why? जानते हैं आप क्यों? Because of his testimony I can say that maybe he was not reading the word. उसकी गवाही के बूते पर मैं बोल सकता हूं कि वह वचन को नहीं पढ़ता था. When he was told by his father, you read the scripture one page at a time, every day. जब उसके पिता ने उसे कहा हर दिन एक पन्ना तुम बाइबल का पढ़ो, He started doing this. वो शुरू किया. One page every day. हर दिन एक पन्ना. And what happened? और क्या हुआ उसके There जीवन was में? a transformation. उसके जीवन में एक परिवर्तन आया. The word of God has the power to bring transformation in your life. परमेश्वर के वचन में वह ताकत या सामर्थ है आपके जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए. So, one side you need to read the word. तो एक तरफ आपको वचन पढ़ना चाहिए, Another side, God has appointed you and me to sow the seed. और दूसरी तरफ परमेश्वर ने हमें नियोग किया है कि उस वचन को हम लोगों के जीवन में बोएं. We need to share the word. हमें लोगों में बांटना है. We need to talk to people about Jesus. हमें जरूरत है लोगों से हम बात करें यीशु के बारे में. Now, if you are a farmer, if you are not sowing seed, how much you will do harvest? अगर आप कृषक हैं और अगर आप बीज नहीं बोते हैं, आप कितना फसल काटेंगे? No sowing of seed, no harvest. आप अगर बीज नहीं बोते हैं, फसल भी नहीं काटेंगे. And more you sow, more you will reap. आप जितना ज्यादा बोइएगा उतना ही ज्यादा फसल काटिएगा. Navjeevan Church, I want to just talk to you this evening. नवजीवन कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूं आज की शाम. How much we are sowing? आप कितना बोते हैं? If we are not sowing more, अगर आप ज्यादा नहीं बो रहे हैं, we will not be able to reap. हम ज्यादा कटनी काटेंगे भी नहीं. So, let's continue to share about Jesus Christ. इसीलिए जरूरी है कि हम यीशु के बारे में लोगों को बतलाते रहें. I don't know what was in Jesus' mind when he was talking about these 4 types of land or soil. मुझे यकीन नहीं है कि यीशु मसीह के मन में क्या चल रहा था जब वो 4 प्रकार के भूमियों के बारे में बतला रहे थे. Especially when it comes to the sowing of the seed. जब खास करके बीज बोने की बात आती है. Of course, other side we say that, what he was talking about, the receptivity of the seed in those different kinds of soil. हम यह भी बोल सकते हैं कि उस बीज को धारण करने की या लेने की क्षमता उस भूमि पर कितनी थी उसके बारे में भी. So he's talking about there are 4 types of people. तो उसने बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं. But from other angle, now I don't know what Jesus meant, but I was just thinking, if I am a sower and there are 4 types of people, how would I do differently so that everybody will understand the word and there will be fruit?
मैं इसको मन में समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं कृषक हूं और अगर मैं जानता हूं कि 4 प्रकार की भूमि है और मेरे पास जो बीज है, मैं कैसे उसको अलग अलग भूमि में किस भांति से उसको मैं बोऊं कि मुझे फसल मिल सके. Maybe along the path, I can make that land better. शायद जो रास्ते के ऊपर जो जगह है जहां पर बीज गिरा, शायद मैं उस भूमि को थोड़ा बेहतर कर सकूं. You know what happens when the people go through a field. जब लोग एक मैदान में से गुजरते हैं and or like a field, like एक जो कृषि भूमि से गुजरते हैं. Yeah, so what happens when over and over when stamp on the field, what happens, it become hardened. और जब वो बार बार उस कृषि भूमि के ऊपर से चलते हैं, वहां भूमि थोड़ा सख्त हो जाता है. So you can stop people from going through that field. तो आप लोगों को रोक सकते हैं कि उस कृषि भूमि से चलना बंद करे वो. What do I mean? इसका मतलब क्या है? Why the heart of people has hardened today? आज लोगों का दिल इतना सख्त क्यों हो गया है? Maybe because of situation. शायद परिस्थितियों के कारण. Because of circumstances. शायद हालातों की वजह से. Can we pray for them? क्या हम उनके लिए विनती कर सकते हैं? Can we talk to them? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? Can we make them understand? क्या हम उन्हें समझा सकते हैं? Because one of the problem this person has is he does not understand. क्योंकि एक समस्या इस आदमी की है कि वह समझता नहीं है. And of course there are 3 reasons why he does not understand. इसके वजह है 3 कि वो क्यों नहीं समझता है. Number 1 could be the word is not clear to him. एक वजह हो सकता है कि प्रभु का वचन उसको साफ नहीं है. Number 2 he could be careless. दूसरी बात सकती है शायद वो थोड़ा लापरवाह है. Number 3 he could be arrogant. और हो सकता है कि थोड़ा घमंडी किस्म का है. If somebody if he is like first type, the word is not clear to him, you can make him understand by putting right words. अगर कोई ऐसा आदमी है जो वचन को अच्छे से समझता नहीं है, तो आप उससे बात करके उसको समझा सकते हैं. So I see that if somebody is not able to understand the word, तो मैं सोचता हूं कि कोई अगर प्रभु का वचन नहीं समझता है, because the problem here is he does not understand. क्योंकि यहाँ पे समस्या है कि वो वचन को नहीं समझता है. Because it says that, it very clearly says he does not understand the word. क्योंकि वो वचन को नहीं समझता है. And the evil one comes and snatches away. और शैतान आता है उसके अंदर से उस वचन को लेके निकाल देता है. So the problem in this first timer person is he does not understand. तो पहला आदमी जो है वो वचन को नहीं समझता है. So you and me as sower, if somebody does not understand, how can we make him understand? तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी, अगर हम कृषक हैं, अगर कोई नहीं समझता है तो हम उसे कैसे समझा सकते हैं? And of course another side, when we read the word, we need to understand. जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें समझने की जरूरत है. Now there could be one of these why we don't understand the word. कभी कभार ये तीनों में से कुछ कारण हो सकते हैं कि हम वचन को नहीं समझ पाते हैं. It could be, the word is not clear to you. शायद वो वचन को आप साफ तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं. Praise God, today we have commentary. Today we have people like us or different people you can just talk to and try to understand, because you need to understand the word in order for you to grow or bear fruit. हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास कमेंट्रीज है, हमारे पास वचन के शिक्षक हैं, तमाम बातें हैं, क्योंकि हमें जरूरत है कि हम वचन को अच्छे से समझें. But there are people like careless. I mean, you have to be serious about your life. लेकिन कुछ लोग होते बड़े ही लापरवाह होते हैं, लेकिन आपको और मुझे जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा इसके प्रति सचेतन हो. You cannot be careless about the word. आप वचन के बारे में लापरवाह नहीं हो सकते. And especially when we are coming to church, when the word is preached, we try to understand. और जहां पे आप कलीसिया में आते हैं, जहां पे वचन की सेविकाएं होती है, वहां पर तो हमें और भी गौर करने की जरूरत है. Because there could be a person, he is sitting here but thinking about something else. क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक बंदा बैठा है लेकिन किसी और बारे में सोच रहा है. Now you have to master your mind. आपको जरूरी है कि अपने मन को आप अनुशासन करें, वश करें. In another word, when we come to church, let's come with a prayer that Lord help me to understand the word. जब आप चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, इस प्रार्थना के साथ आइए कि प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे आपके वचन को समझने के लिए मदद कर. Now you cannot be careless about reading the word. और आप प्रभु के वचन को पढ़ने के बारे में लापरवाह नहीं हो सकते. Oh, 3-4 days no reading, and after that maybe one day you will read one chapter.
शायद 3-4 दिन तक कोई बाइबल नहीं पढ़ते हैं और एक दिन पढ़ते हैं तो पूरा पन्ना या पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं। No, 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 no. I think every day we need to read the word. ऐसा नहीं, लेकिन हर दिन हमें पढ़ना है। You cannot be careless about the word. आप इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। And then, of course, I would not expect that any one of us are arrogant about the word. एक और वजह है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं यहां पे हमारे बीच में ऐसा कोई न हो जो हो एरोगेंट, मतलब एक घमंड प्रवृत्ति हमारे अंदर में। Okay, I know this is true, but I don't want to obey the word. इस तरह का प्रवृत्ति कि हाँ ठीक है प्रभु का वचन बोलता है, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। Oh, I know that the Bible says that we need to forgive one another, but I cannot forgive that person. हाँ, बाइबल बोलता है कि हमें क्षमा करने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं क्षमा करूंगा उस आदमी को। Oh, I can forget everything, but that one I cannot forget. हाँ, मैं सारा चीज भूल सकता हूं, लेकिन वो वाला चीज मैं नहीं भूलूंगा। We can be arrogant. हम घमंडी बन सकते And हैं। I want to tell you that if you are not forgiving, if there is no heart of forgiveness, God can block your blessing. मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर आपका हृदय एक जो क्षमा न देने वाला हृदय है, आपका हृदय दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं बतलाना चाहता हूं परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में रुक सकता Now, है। it's not only about forgiveness. ये सिर्फ क्षमा के बारे में नहीं है, There are many other things that God is asking us to do. और बहुत सारी चीजें जो प्रभु चाहता है कि हम करें अपने जीवन में। Now, if we don't read the word, लेकिन आप अगर प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, if we don't understand, अगर आप नहीं समझते हैं, and if after understanding we don't obey, और अगर समझने के बाद भी हम उस पे बाध्य नहीं होते हैं, then it's very difficult. तो ये बहुत ही कठिन है। Now, if you are struggling with any kind of issues in your life, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मामलों पे आप आजमाइश या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, you are not able to see the fruit. अगर आप अपने जीवन में उस फल को नहीं देख पा रहे हैं, What fruit I'm talking about? मैं किस फल के बारे में बात I'm कर रहा हूं? talking about love, joy, peace, patience. मैं क्या ये प्रेम, आनंद, इन तमाम चीजों के बारे में बात कर रहा Now, हूं? if you don't see those fruits, अगर आपके जीवन में आप ये सारे जो आत्मा के फलों को नहीं देख पाते हैं, if you are helpless, अगर आप थोड़े बहुत ज्यादा असमर्थ हो रहे हैं इस if बारे you are में, not able to change your life, अगर आप अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे, of course you cannot, only God can change your मैं life. जानता हूं आप नहीं बदल सकते, सिर्फ प्रभु बदल सकता है। Without fail, study the word, read the word. बिना किसी लापरवाही के इस वचन को निरंतर आप पढ़िए, And then of course, evil one comes and snatches away. नहीं तो शैतान आता है और छीन कर ले जाता है। Now, from the first perspective, you as a sower, पहली धारणा के अनुसार आप एक कृषक के रूप में can't you chase those birds away from that field? क्या आप उस भूमि में से जो चिड़िया चुग लेती है बीजों को, आप उन चिड़ियों को भगा नहीं सकते? Can't you bind the power of the evil one in this city of Calcutta? क्या आप शैतान की हर एक प्रकार की हुकूमत के खिलाफ प्रार्थना नहीं कर सकते कलकत्ता शहर में? Are you not given the authority over the evil one? क्या आपको सामर्थ्य नहीं मिला है शैतान की हर एक हुकूमत के ऊपर? You have the power to bind the power of darkness. आपके पास सामर्थ्य मिली कि शैतान की अंधकार की हर ताकत को आप बांध सके। You need to exercise your authority. आपको उस अधिकार को प्रयोग करना है। You imagine that there is a chaos in this city if the traffic police they don't exercise their authority. आप सोच कर देख सकते हैं कि इस कलकत्ता शहर में एक बहुत ही अजीब हालात तैयार हो जाएगा अगर ट्रैफिक पुलिस अपने दिए गए अधिकार को प्रयोग ना करे। You imagine that this traffic police recently they have recruited and he was not very sure whether he has that power and authority. आप सोच के देखिए एक ट्रैफिक पुलिस जिसको अभी अभी नियोग मिला है लेकिन अपने अधिकार के बारे में वो सचेतन नहीं है। I mean there will be problem. बहुत सारी समस्याएं Do you होंगी। see that? आप देख सकते हैं इस बात Now को। God has given you power. ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया God है। has given you authority. ईश्वर ने आपको ताकत दिया The है। resurrection power is with you. पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके पास है। The power which raised Lord Jesus Christ from death, that power is available to you. जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया वह क्षमता आपके पास है। What is holding you back? क्या आपको अटका के रखा हुआ You है? just say the word. आपको बोलना है प्रार्थना Speak the में। word of faith. आप विश्वास से बोलिए। Bind the power of darkness. शैतान की ताकत को आप बांधिए And
you will be able to see the transformations of people. आप परिवर्तन देख पाएंगे लोगों के जीवन में। Now, when we see the revival in different times of the history, अगर आप इतिहास में देखेंगे कि उन तमाम जगहों के बारे में जहां परमेश्वर का जागरण आया है, what happened? क्या हुआ वहां? I believe that the power of the evil one was powerless in that उन place. तमाम इलाकों में शैतान की ताकत रहित हो चुकी Oh, थी he may have given up. और शायद वो छोड़ चुका था हाल। Oh, I cannot anymore do anything here. Let me go away from here. वो शायद ऐसा सोच लिया था कि अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे भागना है इस इलाके से। Now, there is one guy in Picnic Garden called Mr. Maithi. पिकनिक गार्डन में एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर माइती। And he does this internet business. वो इंटरनेट का व्यवसाय करता है And he wants everybody to have internet from him. और वो चाहता है कि हर एक आदमी इंटरनेट का कनेक्शन उसी से ले। He doesn't want any company to come in that area. वो नहीं चाहता उस इलाके में दूसरा कोई कंपनी आए। And when I was the director of Campus Crusade, we had office in Kustia Road. जब कुश्तिया में हम थे, कैंपस क्रूसेड के मैं डायरेक्टर था उस ऑफिस में। Now we got this, I think BSNL or some VSNL some connection. हम कुछ BSNL कनेक्शन लाए थे इंटरनेट का। And the very next day we found that our wire is cut. दूसरे दिन हमने देखा हमारा तार कटा हुआ है। We repaired it. हमने उसको जोड़ा, Again he cut it. फिर उसने काटा And this was on and on and on. और ये चलता रहा चलता रहा चलता And रहा finally we had to take connection from him. और बाद में हमको उससे कनेक्शन लेना पड़ा। Oh, if I had the power to stop this guy, अगर मेरे पास ताकत होता उस आदमी को मैं बंद कर पाता, I could have just went to this person and get lost from here. मैं उसको बोलता कि तुम निकलो यहां से, And that could have been the end of his business. और शायद उसके व्यवसाय का खत्म हो जाता। That's what exactly might have happened in those places where there was revival. और शायद मैं ऐसा ही कल्पना करता हूं कि उन तमाम इलाकों में ऐसा ही कुछ हुआ था जहां जहां पर जागरण आया, शैतान का काम उठ गया। People of God, they raised their voices. परमेश्वर के लोग अपने आवाज को उठाए, They exercised their authority, God-given authority. परमेश्वर की दी गई ताकत को उन्होंने प्रयोग किया। They were against the power of the evil one. वो लोग शैतान की हर ताकत के विरुद्ध में थे And he had to leave that place with all his business. और शैतान को अपना सारा धंधा वहां से निकाल के चला जाना पड़ा। Can you see that when you and I, when we stand on behalf of God, Satan will leave this city with all his businesses. क्या आप Hallelujah. जानते हैं कि परमेश्वर के साथ अगर आप और मैं खड़े होकर इस काम को अंजाम दे, उस अथॉरिटी से मांगे, शैतान भाग जाएगा इस इलाके से। Look around in this city. आप देखिए शहर को, See all the problems here. यहाँ पे जितनी समस्याएं उनको Now देखिए। Gaurav was talking about all the kids taking drugs, गौरव बता रहे थे अपने उनके इलाके में जो बच्चे हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, human trafficking, जब देखते हम लोगों को अगवा किया जा and रहा है, all kinds of things. हर प्रकार की बुराइयां। Who is doing this? कौन कर रहा है? Satan, the evil one. शैतान। He has a flourishing business in city of Calcutta. कलकत्ते में उसका कारोबार बहुत What अच्छा is चल रहा people है। of God doing here? ईश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? Oh, we need to raise up. हमें खड़ा होना है, We need to wake up. हमें खड़ा होना We है, need to bind the power of darkness. हमें शैतान की हर ताकत You को have the बांधना है। power. आपको I ताकत have मिला the है, power. मुझे मिला है। Let's have morning walk. आइए हम मॉर्निंग वॉक करें, Let's have prayer walk. आइए हम लोग प्रार्थना में हम Let's चले। go step into every part of this city. इस कलकत्ते शहर के हर एक जगह से हम गुजरे प्रार्थना Let's में। go and bind the power of हम darkness. शैतान की हुकूमत को बांधे। I believe that you and I, we have the power. मुझे यकीन है कि आप में और हम में प्रभु ने ताकत दिया He है। is already defeated. Hallelujah. शैतान हमेशा हारा हुआ है। We are हालेलुया। in the victory side. हम जयवंत हैं, We are victorious. हम जयवंत हैं। And our Lord can rule in this city when we raise up. अगर हम खड़े हो जाएं, जाग जाएं, परमेश्वर अपने अधीन में हर एक चीज को ले सकता है। So, what I'm saying is this. मैं यह कह रहा हूं, A farmer can chase those birds away. एक कृषक उन तमाम दाना चुगने वाली चिड़ियों को भगा सकता है। We can chase the evil one from the city of Calcutta. हम सकते हैं कलकत्ते से शैतान को भगाने। How many of you believe in that? कितने जन विश्वास करते हैं I इस बात believe को? in that. मैं विश्वास करता I हूं। believe there could be revival in city of Calcutta. मैं मानता हूं कि कलकत्ते में एक जागरण आ सकता है। And God does not need too many people. और परमेश्वर को बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। Only 120 people, then they were kneeling before God and asking God for His Holy Spirit. 120 जन जब प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक मांग रहे थे, God answered. परमेश्वर ने They जवाब were दिया filled with the Holy और Spirit. वो लोग आत्मा में पूर्ण हुए। And Peter stood in front of the crowd.
और पतरस पूरे भीड़ के सामने खड़ा हुआ। And the same Peter who denied Jesus for 3 times, वह पतरस जिसने यीशु मसीह को अस्वीकार किया था 3 बार, he preached to the people. उसने लोगों के बीच में वचन को बांटा And there were more than 3,000 people added to the church. और 3,000 लोग कलीसिया में जुड़े। Oh, the clutch of the evil one was loosened. शैतान का जो ताकत था वह ढीला पड़ गया। We sing that song, what is this? Romans 16:19 says, रोमियो 16:19 के बारे में हम गाना गाते My हैं, dear brothers and sisters, let that be true in our life. मेरे भाई और बहनों, ऐसा आपके जीवन में सच होने पाए। Let's trample that evil one under our feet. आप और मैं शैतान को पांव तले रौंदने पाए। He is already defeated. वो पहले से हारा हुआ है। Hallelujah. He is already Hallelujah. defeated. वो फिर से हारा हुआ है। All right. So I think I'll close here. मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। We will see in next time when I preach. Maybe I will see that rest to 3 types of land. हम बाकी के 3 प्रकार की भूमियों के बारे में अगली बार जब मैं प्रचार करूंगा Because हम देखेंगे, we also have Lord's. We will be taking part in Lord's table. क्योंकि हम लोग प्रभु की मेज में भी शामिल होंगे So आज। just I want to leave this with you. मैं आपके बीच में इन बातों को छोड़ना चाहता हूँ। Whether you like it or not, आपको पसंद हो या ना हो, whether you feel it or not, आपको महसूस हो या ना हो, read the word. वचन को, प्रभु के वचन को पढ़िए। 1 page every day. 1 पन्ना हर दिन पढ़िए। And bind the power of darkness. और शैतान की हुकूमत के खिलाफ खड़े होइए। Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनिए। Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत रहिए। The power of Lord is available to each one of प्रभु us. की सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है। Hallelujah. May हालेलुया। God bless you. प्रभु आशीष करे।